Open the page number 87, that is the non-congressism. Non-congressism is a anti-political party against the opposition party against the Congress. And Ram Manohar Lohia, the socialist leader, gave the name of the non-congressism because they were not satisfied with the rule of Congress. They defend that Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of the ordinary poor people. The fourth general elections to Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. The Congress won the elections, but the Congress had not got as many seats as he had got in 1952, and it was called the political earthquake. Half of the ministers of the Indira Gandhi's cabinet were defeated, and these were includes Kamraj in Tamil Nadu, S.K. Patil in Maharashtra, Atulya Ghosh in West Bengal, and K.B. Sai in Bihar. The Congress lost majority in as many as 7 states, and in 2 other states defections prevented in it from the forming a government. एंड दिस टाइम जो था डिफेक्शंस जो है यहाँ से डिफेक्शंस जो था मेन जो था स्टार्ट हुआ था और कोalitions गवर्नमेंट जो है ये बननी स्टार्ट हुई थी और इसमें जो है कांग्रेस जो है इसने क्योंकि डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस वाज ओवर बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनली जो डोमिनेंस था कांग्रेस का वो हर बार जो कांग्रेस जीतती थी लेकिन इन द 1967 इलेक्शन द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस वाज ओवर and most of the states, 9 states where the Congress lost power, these states were Punjab, UP, Bihar, West Bengal, Odisha, Madras and Kerala, and in the Rajasthan Congress made the coalition government. In this period gave rise to the expression of Ayaram and Gyaram. Ayaram and Gyaram in this period, an MLA in Haryana, Gyalal in 1967, he changed his party thrice in a fortnight and from the Congress to United Front and back to Congress and then within 9 hours to the United Front again. यस स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक तो नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में करना है कि व्हाट इज द नॉन कांग्रेसिज्म बट द सेकंड वन इज द आयाराम एंड ग्याराम एंड नाउ देयर इज द syndicates. Most coalition in the states were topples. Indira Gandhi's now faced real challenges not from the opposition but from within her party. इंदिरा गांधी की जो अपनी पार्टी थी उससे जो इंदिरा गांधी जो है मेन उसको चैलेंज मिल रहा था क्योंकि जो सिंडिकेट थे सिंडिकेट्स क्या थे द सिंडिकेट वाज द ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस leaders within the Congress. The leader has expected Indira Gandhi to follow their advice. कि जो syndicates थे वो इंदिरा की ही पार्टी के लीडर थे लेकिन वो ये चाहते थे कि इंदिरा जो भी डिसीजन लेती है वो उनकी एडवाइस से ले बट इंदिरा गांधी here the face 2 main challenges. She needed to build her independence फ्रॉम द इंडिपेंडेंस वो इन सिंडिकेट से अपने आप को फ्री करना चाहती थी उनसे आज़ाद होना चाहती थी और शी आल्सो नीडेड टू वर्क टुवर्ड द रिगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शन कि इंदिरा का मेन पर्पस ये था कि एक तो अपने आप को सिंडिकेट से अपने को अलग करना और दूसरा जो है जो कांग्रेस की जो छवि थी वो 1967 के इलेक्शंस में ख़त्म हो चुकी थी उसको दोबारा से गेन करना था दिस प्रोग्राम इंक्लूडिंग सोशल कंट्रोल ऑफ इंदिरा गांधी देन वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट ए 10-point प्रोग्राम इन मई 1960 इंदिरा गांधी ने 10-point प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था उसमें मेन एक भाग था कि वो जो है कंट्रोल ऑफ बैंक नेशनलाइज ऑफ द 14 बैंक की 14 बैंक नेशनलाइज करना और जनरल इंश्योरेंस सीलिंग और अर्बन प्रॉपर्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स land reforms and the provision of outside to the rural poor.
कि इससे जो है इंदिरा गांधी को ये 10 पॉइंट्स उसने रखे थे ताकि जो है वो अपनी जो छवि है उसको दोबारा से, जो कांग्रेस है वो अपना इन्फ्लुएंस खो चुकी थी उसको दोबारा प्राप्त कर सके। मेनली जो फैक्शनल जो था इन दोनों में, सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी में कब स्टार्ट हुआ? The factional rivalries between the syndicate and Indira Gandhi's came in open in 1969. There was the election of the president, and after the death of the Zakir Hussain, and syndicates nominate Mrs. Gandhi's long opponent and then the Speaker of Lok Sabha and Sanjeeva Reddy as an official Congress candidate. जितने भी सिंडिकेट थे वो प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए चाहते थे कि संजीवा रेड्डी जो है उस समय जो स्पीकर था और ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट था उसको जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रखा जाए। बट इंदिरा गांधी रिटेलिएट by encouraging the vice president V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate. पर इंदिरा गांधी जो थी उसको पता था कि संजीवा रेड्डी जो है स्टार्ट से ही उसके ओपोनेंट था, इसलिए इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी और इंदिरा गांधी ने नॉमिनेशंस के लिए जो उस समय वाइस प्रेसिडेंट था V.V. गिरी उसको जो है एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए इसको रखने के लिए कहा गया। She also announced major policies like nationalize of 14 leading private banks and the abolition of the private purse. उसने और जो है अनाउंस किया, एक तो जो नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक जो थे उनको नेशनलाइज करना, और सेकेंड वन इज द प्राइवेट पर्स। प्राइवेट पर्स क्या था? दैट वाज द स्पेशल प्रिविलेज दैट वाज गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसेस। And serious differences emerged between her and Morarji Desai, the deputy prime minister and the finance minister at that time, leaving the government. उस समय जो मोरारजी देसाई था उसमें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वो इससे एग्री नहीं थे और उनमें जो है एक सीरियस डिफरेंसेस आ गया और इसकी वजह से उन्होंने जो था अपनी ये पोस्ट जो थी छोड़ दी। देन अदर कांग्रेस प्रेसिडेंट एस Ninglangpa issued a whip, asked all the Congress MPs and MLAs to vote in the favor of Sanjeeva Reddy. तो वहाँ जो था इनका प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट था, उसने सभी कांग्रेस के MPs एंड MLAs को ये कहा कि वो संजीवा रेड्डी के फेवर में जो है वोट दें। द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर ए कॉन्शियस vote, which means that the MPs and MLAs were from the Congress should be free to vote the way they need. तो उसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने ये अपने MPs MLAs को ये कहा कि वो जो है फ्री हैं, किसी को भी वोट देने के लिए अपनी मर्जी से वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। इसलिए जो था द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द विक्ट्री ऑफ V.V. गिरी कि मोस्ट ऑफ द MPs एंड MLAs वर इन द फेवर ऑफ द इंदिरा गांधी के फेवर में थे, इसलिए जो है ज़्यादातर जो थे वोट किसको मिले? V.V. गिरी को, एंड डिफीटेड संजीवा रेड्डी द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। इसलिए जो था ऑफिशियल कैंडिडेट जो था संजीवा रेड्डी वो हार गया, क्योंकि उसमें इंदिरा गांधी जो है मोस्टली जो है जितने भी MPs थे वो इंदिरा गांधी के फेवर में थे। The defeat of the official Congress candidate formalized the split in the parties, कि इसी की वजह से split in the कांग्रेस में हुआ कि कांग्रेस में आपस में इसकी वजह से split हो गया, इनका आपस में बंटवारा हो गया। By November 1969, the Congress group led by the syndicate came to be referred to as the Congress O। तो इसमें जो है कांग्रेस की पार्टी जो थे उनमें सिंडिकेट थे, they had made the another group that is the Congress O, and the group led by Indira Gandhi came to be called the Congress R। जो इंदिरा गांधी का ग्रुप था that was the Congress R, और जो सिंडिकेट्स थे उनका ग्रुप था ये कांग्रेस O। Yes students, you have to prepare this map that is on the page number 89। Congress got majority in the 1967 assembly polls and Congress did not get majority in the 1967 assembly polls। कि कांग्रेस जो थी
1967 में कौन कौन सी स्टेट्स में उसको जो मेजॉरिटी मिली थी और कौन कौन सी स्टेट्स में उसको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। जहाँ पर कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, दीज स्टेट्स वर, वन इज़ द पंजाब, सेकेंड वन इज़ उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। राजस्थान जो है कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बट कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर्स, की कोलिशंस गवर्नमेंट जो थी वो बनी थी with the help of the other parties, and then Goa and Kerala and Odisha, Bihar, West Bengal, इन सब स्टेट्स में जो है कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। ओनली सम स्टेट्स देयर विच द कांग्रेस गॉट द मेजॉरिटी। दीज स्टेट्स वर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, एंड देन त्रिपुरा, असम, मणिपुर, एंड नेक्स्ट इज मैसूर and the Madhya Pradesh and Gujarat. These are the state in which the Indira Gandhi, in which the Congress got the majority. Yes, the students, there's a next topic. In this topic, you have to learn what is meant by the coalition government and what is defections and what is the story of the IRM again and what is meant by the syndicates and that is the what is the non-congressisms, and these are the topics for, and this is the fourth general election in 1967 and this is also the presidential election in 1969. Thank you.